प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया कि हम उसके वचन से जान सके। We thank the Lord that He has given us another day that we can learn from His Word. मैं अपने हर दिन के बाइबल अध्ययन के दौरान होशिया नबी की पुस्तक पढ़ रहा था During my daily Bible meditation, I was reading the book of Prophet Hosea. और होशिया जो भविष्यवक्ता है, होशिया नबी जो है, उसके जीवन में हम देखते हैं कि प्रभु ने उससे एक वेश्या से विवाह करने के लिए कहा था। And in Hosea, we see in the life of Prophet Hosea that the Lord asked him to get married to a prostitute. और वहाँ पर आगे वचन में लिखा है कि दो जो बच्चे थे वो तो उससे थे, लेकिन एक जो बच्चा था वो दूसरे पुरुष से था। And later on, the book tells us that out of 3 children that Hosea had, 2 were his own, but one was not even his own. It was an illegitimate child through some other man. और मैं यही मनन करते समय ये विचार कर रहा था कि प्रभु ने नबी से इस तरह की बातें करने के लिए क्यों कहा। And then I was meditating on this book and I was thinking, why is it that the Lord asked Hosea to say all these things? और नए वाचा के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस हमें प्रेरित करता है या हमें सिखाता है कि हमने एक अविश्वासी से भी विवाह नहीं करना है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर खुद होशिया से एक वेश्या के साथ विवाह करने के लिए कहता है। And in the new covenant we see that Paul tells us we should not even get married to an unbeliever. Here we see that for Hosea, the Lord himself told him that go and get married to a prostitute. तो वहाँ पर जब मैं उसको जानने के लिए उस पर मनन कर रहा था और अलग अलग प्रभु के दास लोगों को सुन रहा था उस विषय में, So when I was meditating and trying to understand this, I was listening to different servants of the Lord. तो वहाँ पर एक बात जो मुझे बहुत छुई कि दोनों प्रभु के दास ये बता रहे थे कि प्रभु उन भविष्यवक्ताओं को पहले सारी चीज़ें ऐसा करने के द्वारा कि हमें क्या महसूस होता है, हमारे हृदय में क्या भावनाएं आती है इन बातों के बाद में, तो प्रभु अपनी भावनाओं को उन भविष्यवक्ताओं को पहले महसूस करने लगाता था, फिर वो अपने वचन को इजरायलियों के पास भेजता था। And the people were saying that the Lord first wanted the person to know how he is feeling. In order to explain to them what he is feeling about the people, he would ask the prophets to go through such experiences. And once they had that feeling of what the Lord is feeling, then he gave them a word that now you go and speak to the Israelites. तो प्रभु इजराइल को ये बताना चाह रहा था कि इजराइल एक वेश्या की तरह हो गई थी। And the Lord wanted to show Israel that Israel herself had become like a prostitute. देखिए, प्रभु ने हमेशा इजराइल और उसका नाता एक पति पत्नी के नाते के समान हमेशा दिखाया है। God always compared the relationship between him and his Israel like the relationship between a husband and a wife. और हम देखते हैं कि आगे किस तरह जब इजराइल लोग एक मूर्ति पूजक हो गए और दूसरे देवताओं के पीछे जब चलने लगे, And we see later on how Israelites, when they became idolaters, they started worshipping other gods. तो एक पत्नी के रूप में वो बेवफा हो गए। As a wife, they had been unfaithful to the Lord. और प्रभु वही इस नबी को, इस भविष्यवक्ता को महसूस कराना चाहता था कि एक बेवफा पत्नी के साथ रहने का जो एहसास है वो किस तरह का होता है। That is what the Lord wanted this prophet to experience, what it means to live with an unfaithful wife. और जब उसने उसे महसूस किया तब जाकर उसने इजरायलियों को प्रभु के हृदय का जो हाल है या प्रभु की हृदय की जो पीड़ा है वो जाकर उनको बताया। When Hosea had experienced all this, then Hosea could go and tell what God is experiencing with his people, what God is experiencing with Israelites. और उसके आगे हम देखते हैं कि प्रभु उनसे कहता, उस नबी से कहता है, जब वो घर छोड़कर अपने जो दूसरे प्रेमी थे उनके पीछे जब चली जाती है, तब भी प्रभु होशिया से कहता है कि जा और उसे खरीद कर वापस ले आ। Later on in the same chapter we read that when Hosea's wife left her family, went after other men, God then tells Hosea, now you go love her and bring her back. तो पहले वो उसकी पत्नी होती, उसके बावजूद भी जाकर उसे खरीदना होता है। And then even though she is his wife, but he had to go and purchase her back. और यहाँ प्रभु अपने प्रेम को इजरायलियों के प्रति दिखा रहा था। And here the Lord is displaying his love towards the Israelites. बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना लहू बहाकर हमें खरीदा हुआ है। The Bible tells us in 1 Corinthians 6 that the Lord Jesus shed his blood and has purchased us. और कलीसिया को भी प्रभु अपनी पत्नी कहता है। And even for the church, the Lord says that the church is my bride. और इसी तरह का प्रभु ने दर्शन एक और नबी, एक और भविष्यवक्ता को दिया था। A similar kind of vision the Lord has given to one more prophet.
तो वो यहज़िकल भविष्यवक्ता को, that is the prophet Ezekiel. और यहज़िकल 37 अध्याय उसका 7 और 8 वचन मैं आपके पास सामने पढ़ूंगा। I want to read Ezekiel chapter 37 verse 7 and 8. और इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूकंप हुआ, और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तो यहाँ पर इस नबी को भी प्रभु ने दर्शन देकर अपने हृदय की बात बताई। Here also the Lord gave this prophet a vision and showed him what is in his heart. तो यहाँ पर इस वाक्य के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि किस तरह प्रभु एक दर्शन दिखाता है यहज़िकल को, और एक वादी में वो जाता है जहाँ पर सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, यानी कि मरे हुए व्यक्तियों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी और वो बिखरी हुई थी। And most of you might know this incident, that how God takes Ezekiel to a valley of dry bones where dry bones were lying away. तो मैं इसको निजी तौर पर मेरे जीवन को देखता हूँ जब मैं प्रभु में नहीं था। And I look at this personally for my own life, for those times when I was not in the तो Lord. मैं भी उन हड्डियों की तरह मरा हुआ था और बिखरा हुआ था। Exactly like those dry bones, I was dead, I was scattered. लेकिन प्रभु की कृपा हुई और मेरे जीवन में प्रभु का वचन आया। But the Lord was gracious and His word came into my life. और जैसे यहज़िकल भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की और उन हड्डियों को जब कहा तो वो साथ में एक साथ आ गई वो सारी हड्डियाँ। And then when the prophet prophesied, Ezekiel prophesied, all those dead bones came together. तो इसी तरह प्रभु का वचन जब हमारे जीवन में भी आता है तो हम भी इन हड्डियों की तरह, हमारा शरीर सब कुछ एक साथ आ जाता है, और फिर आगे जब हम पढ़ते हैं तो उस पर मांस चढ़ जाता है, और वो जो सूखी और बिखरी हुई हड्डियाँ थी वो सुंदर दिखने लगती है। And then we see that when the Lord's word comes into us, our scattered life comes together, and there we see that after some time flesh started appearing and that dry bones became something beautiful to look at. प्रभु का वचन आता है, सुसमाचार हम सुनते हैं, हमें अपने पापों का ज्ञात होता है, फिर हम अपने मन फिराव कर कर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, और उसके बाद कलीसिया आने लगते हैं, बाइबल पढ़ने लगते हैं। So we hear God's word, we hear the gospel, the Lord's word comes to us, and we start, our life starts getting changed, and we come to the church, we start coming to the church. सही सिद्धांतों को जानने लगते हैं, And we start understanding the correct doctrines as well. नैतिक जीवन जीने लगते हैं, We start living a moral life, और कलीसिया जाने लगते हैं। and we start going to church as well. तो वो संरचना तो वापस आ जाती है, And so that form is restored, the form of that body is restored. लेकिन शरीर और हड्डियां तो साथ में मिल गई, लेकिन अब भी क्या वो खड़े हो पाए थे? So now there is flesh and bones have come together, but could that flesh and bones stand on their own? नहीं, जबकि हड्डियां और शरीर तो आ गया, लेकिन अब भी उनके अंदर जीवन नहीं था। And so even they could not do it. Even though flesh and bones had come, they did not have life in them. तो इसी तरह हम भी जब प्रभु का वचन सुनकर, प्रभु का वचन हमें ज्ञात कराता है कि पाप क्या है, और पाप के साथ हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। जैसे भाई ने भी अभी पहला कोरिन्थियों 9:26 से बताया कि आत्मा शरीर के विरुद्ध है और शरीर आत्मा के विरुद्ध है, तो ये संघर्ष तो शुरू हो जाता है। And when we get God's word comes to us, we get a realization of sin, we get a conviction of sin, and as brother shared from 1 Corinthians, we immediately understand that struggle that is happening, because the flesh is against the spirit and the spirit is against the flesh. We realize the struggle. लेकिन हम उस संघर्ष पर विजय नहीं पा पाते, हम हार जाते हैं। But we are unable to conquer that struggle, overcome it. We keep losing and we keep getting defeated. मेरा खुद का निजी जीवन इस तरह का था। My own personal life was exactly like मैं this. एक भी रविवार मिस नहीं करता था। I would never miss a Sunday service. मैं बाइबल पढ़ना मिस नहीं करता था। I would never miss reading the Bible. मैं पाप को जान चुका था कि इस तरह की बातें करना गुनाह है, गलत है, लेकिन फिर भी मैं उस पर विजय नहीं पा रहा I था। knew about sin, that these things are wrong. The very things that I'm doing are wrong, but I was unable to overcome them. तो मेरे हड्डियां जुड़ चुकी थी, मेरे हड्डियों पर मांस तो चढ़ चुका था, लेकिन मेरे अंदर अब भी जीवन नहीं आया था। My bones had come together, the flesh had come over the bones, but there was still no life within me. तो वचन, प्रभु का वचन
हमें एकत्रित करता, हमें खूबसूरत बनाता है, लेकिन उस वचन को जीने के लिए हमें किस बात की आवश्यकता है? And so the Lord's word will bring us together. It makes our life beautiful. But what do we need in order to live this life? तो हम आगे एजिकल के पुस्तक में ही 37 अध्याय 9 और 10 वचन में पढ़ते हैं। Same chapter, verse 9 and 10 we read. तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गए। तो पवित्र आत्मा ही जीवन लाता है। It is only the Holy Spirit who brings life. देखिए, वचन आकर हमें हड्डियों को एक करता है, खूबसूरत बनाता है, लेकिन उसमें जीवन कौन डालता है, उसके अनुसार हम कैसे जी सकते हैं? पाप को तो हम जान गए हैं, लेकिन पाप पर जय कैसी पानी है, तो वो केवल पवित्र आत्मा ही जय लेकर आता So है। the word comes into our life, we understand sin, we get a conviction of sin, our lives become better. But how do we overcome sin? That is only when the life of God, the Spirit of God comes in us. देखिए, उसी के समांतर उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय और 7 वचन में भी ऐसा ही वचन है। We read a similar verse in Genesis chapter 2 verse 7. और वहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो पहले परमेश्वर ने रूप दिया, उसकी संरचना दी, लेकिन जीवन केवल श्वास से ही आया। So first the Lord formed him, the Lord gave him a shape, but life came when the Lord breathed into him. तो जैसे उत्पत्ति में, वैसे यहाँ पर भी वचन और आत्मा का संग मिलकर ही जीवन मिलता है। And just like in the book of Genesis, we see in Ezekiel also that the word and spirit together will give us life. तो आज हम एक कलीसिया के रूप में किस तरह के हैं? So today when we are in the church, what kind of person or what kind of life we have? हम केवल सूखी हड्डियां हैं मांस से भरी हुई, Are या we- हम जीवित सेना हैं? Are we dry bones which are covered with mass, or are we a living person who is standing an exceedingly great army? हम आज कलीसिया के रूप में संगठित तो हो रहे हैं, बाहरी रूप से हम सुंदर भी दिख रहे हैं कलीसिया के रूप में, सही सिद्धांत है हमारे, लेकिन हम क्या सामर्थ्यहीन है, क्या आगहीन है और परमेश्वर की आत्मा के अद्भुत स्पर्श के बिना है? So as a church, yes, we have been formed as a church, but are we powerless? Are we without that fire? Do we lack the spirit? देखिए, दूसरा तीमुथियो 3:5 में इस अवस्था के लिए एक चेतावनी दी गई है। And for exact this condition, we see a warning in 2 Timothy. 3:5 2 Timothy chapter 3 verse 5. वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसे से परे रहना। They will have a form of godliness. They will hold on to a form of godliness, though they will deny its power. Avoid such men as these. देखिए, कई बार हमने ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, या जब हमने उनसे इस जीवन के विषय में बताया या ये नए नियम के जीवन के विषय में बताया, तो कई लोगों ने ये कहा है कि यार, इस तरह का जीवन कौन जी सकता है? वो तो परमेश्वर थे, वो प्रभु के पुत्र थे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस तरह का जीवन जी पाए। लेकिन हम जब तक इस शरीर के अंदर है, हम पाप करते रहेंगे, पाप के ऊपर जय मुमकिन नहीं है। Many times when we tell people about this life that is possible of being like Christ, many people immediately say, no, that life Jesus could live because he is the Son of God. But today we cannot live that kind of life. We cannot live a Christ-like life. देखिए, आज क्या हमारा जीवन इस तरह का है? क्या हम इस तरह से कह रहे हैं? Today is our life the same? Are we asking the same question, or are we feeling the same that we cannot live this life? क्या हम कह रहे हैं कि ये जीवन मेरे लिए जीना नामुमकिन है? Then are we saying that it is impossible for me to live this life? हम कह रहे होंगे क्यों? And then we might be thinking, why? क्योंकि हम भक्ति का भेष तो धरे हुए हैं, लेकिन उसकी सामर्थ्य को नहीं जानते। Because we have held on to a form of godliness, but we do not know its power. हमारी हड्डियां तो एक साथ जुड़ गई है, उस पर शरीर भी, उस पर चमड़ा भी आ गया है, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आया है। Our bones have come together. It has been covered with flesh, but still the Holy Spirit has not come into us.
हम प्रेरितों के भी जीवन में देखते हैं। We see in the life of the apostles as well. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने भी उनसे कहा था, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 8 वचन में, The Lord Jesus himself told the apostles in Acts chapter 1 verse 8 कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the remotest part of the earth. और प्रभु ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा था। And the Lord told them to wait, to tarry in that place. और जब वो एक जगह पर रुककर 120 लोग जब एक साथ मिलकर जब प्रार्थना कर रहे थे और उस इच्छा को उन्होंने जाहिर की कि प्रभु उन्हें पवित्र आत्मा से भरे, तब प्रभु का वादा पूरा हुआ। हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 वचन में। And then when they had gathered together in Jerusalem and when they asked the Lord, we see that the promise of the Lord was fulfilled in Acts chapter 2 verse 1 to 4. जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे उन अन्य भाषा में बोलने लगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आया तो हम उसके बाद के अगर वचनों को पढ़े तो किस तरह पतरस जो कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह का डर के मारे इनकार कर चुका था, वो कितनी निडरता से होकर वहाँ पर प्रचार कर रहा है और प्रभु के सुसमाचार को बता रहा है। And we see when the Holy Spirit came upon these apostles, Peter, who had just now denied the Lord because he was out of fear, he had denied him, how boldly he is proclaiming the gospel here. तो यहाँ पर भी हमने जब तक प्रभु से हम मांगेंगे नहीं या इच्छा वो जाहिर नहीं करेंगे प्रभु के सामने, तब तक प्रभु भी हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा। So unless we ask, unless we express our desire for the Holy Spirit, the Lord will not fill us with His Holy Spirit. तो उससे पहले हमने इस जीवन को जीने के लिए इच्छा हमारे मन में आनी चाहिए। And before that, we should have a desire to live this life. और तभी प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें पवित्र आत्मा से भर सकता And है। it is only the Lord Jesus Christ who can fill us with His Spirit. देखिए, और कोई व्यक्ति कई जगह पर हम देखते हैं कि कोई हाथ रखता है या कोई प्रार्थना करने से हमने पवित्र आत्मा पाया, नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें पवित्र आत्मा से भर सकता है। And in many places we see that someone says that we will lay hands on you or something, but we see in the Bible that it is only the Lord Jesus Christ who can fill us with His Holy Spirit. तो हम क्या वो इच्छा रखते हैं या केवल हड्डी और मांस से ही सहमत है या खुश है? Do we have that desire, or today are we just happy by having the flesh and bones covering us? तो हमें क्या करना चाहिए? Then what should we do? हमें वचन सुनना है, We have to hear the word. परमेश्वर का वचन को अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने देना है, We have to allow the word of God to reorganize, to reform our lives. उसे अपने जीवन को चुनौती देने देना है, We have to allow the word to challenge our lives. हमें सुधारने देना है We have to allow it to correct us. और हमारे इस अस्वस्थ जीवन को ढांचा देने देना है। And then we have to allow the word of God to give a form to our restless life. लेकिन क्या हम केवल हड्डी और मांस से ही संतुष्ट हो जाएंगे? But will we just be happy with flesh and bones? नहीं, हमें आत्मा की खोज करना है। No, we have to seek for the Holy Spirit. लूका 11 अध्याय उसके 13 वचन में कहा है, Luke chapter 11 verse 13 says, यदि तुम बुरे होकर भी अपने बालकों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो यहाँ पर भी देखिए, वहाँ लिखा है कि पिता परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। Here also says, why will your heavenly Father not give the Holy Spirit to those who ask Him, or how much more will He give to those who ask तो Him? पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमसे ज्यादा इच्छा रखता है हमें पवित्र आत्मा देने की। And we should have a faith that the Lord is more desiring,
more eager than us to fill us with His Holy Spirit. उसी इच्छा से प्रभु ने यहज़िकल नबी को ये दर्शन दिया था कि भाई इस तरह का जीवन ही काफी नहीं है, हड्डी और मांस एकत्रित होना ही काफी नहीं है, उसमें श्वास आना है, उसमें जीवन आना है, वही जीवन प्रभु को संतुष्ट करता है। With the same desire that the Lord had, the Lord gave a vision to Ezekiel saying, it is not sufficient for the dry bones to gather, not sufficient for them to be covered with flesh. They need that the life comes within them. देखिए, जब वो जीवन आएगा तभी हम एक जीवित सेना प्रभु के लिए बन पाएंगे। When that life comes in, only then we can become a living army for the Lord. मेरे अपने जीवन के अंदर भी मांस और हड्डी तो आ गई थी, लेकिन मैं एक हारा हुआ जीवन जी रहा था। In my own life, flesh and bones had come, but I was living a defeated life. लेकिन जब प्रभु की पवित्र आत्मा मेरे जीवन के अंदर आई, भाई जैक को सुनने के बाद जब मैंने उसकी इच्छा जाहिर की और प्रभु के सामने ईमानदार बनकर गया, तब प्रभु ने मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरा और मैंने पापों के ऊपर विजय देखी। But when I heard Brother Zach and I became honest and went to the Lord filled me with the Holy Spirit and I saw victory over sin. देखिए, पहले जब मैं एक पिंतकोस्त सभा में जाता था, Earlier I would go to a Pentecostal church. और वहां मैं विचार करता था कि अन्य भाषा में बोलने से ही पवित्र आत्मा आता है। There I would feel that only if I speak in tongues, then I can be sure that the Holy तो Spirit मैं has कई come. बार इस वाक्य को बता चुका हूं जो मेरे साथ घटा था। Many times I have told you this incident that happened in my life. मेरे जीवन में मैं एक सभा में गया था, यूथ वन करके उस सभा का नाम था। I had gone to a Youth One meeting. वहां पर एक बहुत ही यंग एक पास्टर आया था Some young pastor had come there और वो इसे माइक में फूक रहा था, फू फू करके, and he was blowing into the mic और मेरे आसपास के सभी लोग गिर रहे थे। and everyone around me were falling down on the floor. केवल मैं ही खड़ा था और मैं नहीं गिरा। I was the only one who was standing and I did not fall down. और मेरे मन में उस समय ये शंका आई कि क्या मैं सबसे बड़ा पापी हूं कि प्रभु मुझे अपनी पवित्र आत्मा से नहीं भर रहा है। And that day a doubt came in my mind, am I a big sinner that the Lord is not filling me with His Holy Spirit? और तब थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने आकर मेरे माथे पे इस तरह से ऐसा धक्का मारा तो मैं किसी के पैर में फंसकर मैं गिर गया। And then that person came and pushed me on my forehead and I tripped because I touched someone else's leg and I fell down. और मैं नीचे ही गिरा रहा क्योंकि बाकी सभी लोग भी गिरे थे, लेकिन मेरे मन में ये डाउट था, मैं अभी तक पवित्र आत्मा से नहीं भरा हूं। And I kept laying down on the floor because everyone else was down there, but I still had a doubt that I am still not filled with the Holy Spirit. लेकिन जब प्रभु ने मुझ पर कृपा की और भाई जैक के संदेश को सुनने का मुझे मौका दिया, But when the Lord had mercy on me and gave me an opportunity to hear Brother Zach's तब messages, भाई जैक को जब मैंने सुना कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को पवित्र करता है, हमें गिराता नहीं है, then I heard that the Holy Spirit makes us holy. He does not make us fall. और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा जीवन तो हारा हुआ है। अगर मेरा जीवन में पाप के प्रति जय नहीं है तो इसका मतलब मुझे पवित्र आत्मा अब तक नहीं मिला है, लेकिन जिस दिन पाप पर जय आएगी तभी मैं विश्वास कर पाऊंगा कि पवित्र आत्मा मुझे मिला है। That day I realized that when I am not living a holy life, I am not overcoming sin, means the Holy Spirit has not filled me. But the day I start living an overcoming life, that means that the Holy Spirit has filled me. और उस एक दिन ऐसा आया मेरे जीवन में कि जहां प्रभु ने मुझे पाप के ऊपर जय दिलाया, तब मुझे विश्वास हुआ कि प्रभु ने अब मुझे पवित्र आत्मा से भरा है। उस दिन वो सब झूठ था जो मैं उस दिन देखा था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे पाप पर विजय दिलाया है, मुझे पवित्र किया है, मेरी वाणी को शुद्ध किया है, मेरे पत्नी के साथ संबंध को शुद्ध किया है, मेरे बोलने के तरीकों को शुद्ध किया है। तब मैं जान सकता हूं कि हाँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। And a day came in my life when I had victory over sin and I realized what I saw in that meeting that day was completely false. The Holy Spirit has come and purified me. He has purified my speech. He has purified my relationship with my wife. He has purified things in my life and I know that I am filled with the Holy Spirit. लेकिन वो जीवन क्या वहीं थम जाना चाहिए? But should that life stop there? नहीं, प्रभु फिर दूसरा एक दर्शन यहज़िकल नबी को दिखाता है। No, the Lord gives another vision to the prophet तो Ezekiel. यहज़िकल 47 अध्याय उसके 3 से लेके 5 वचन मैं पढ़ूंगा We read in Ezekiel chapter 37 verse 3 to 5. कि जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका,
क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तो देखिए, ये जो पवित्र आत्मा से भरे जाने का जीवन है, एक बार का अनुभव नहीं है। And this life of being filled with the Holy Spirit is not a one-time तो experience. एक बार मुझे एक पाप पर जय मिली तो बस मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, अब मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ क्या? It does not mean that once I have received the Holy Spirit, now I can live the way I want. Is it like that? नहीं, देखिए, पवित्र आत्मा से हमें भरते जाना है। No, we have to go on being filled with the Holy Spirit. तो पहले जो टखनों तक पानी था यजिकल नबी के, First, the water was up to the ankles of Prophet तो Ezekiel. ये आत्मिक जीवन की शुरुआत है। And this is the beginning of the Christian life. ये सरल विश्वास है, This is simple faith. आज्ञाकारिता की शुरुआत है। Here it is a beginning of obedience. लेकिन दुख की बात है कि बहुत से विश्वासियों का जीवन यहीं रुक जाता है। But the sad thing is, many Christians, their life just stops there. लेकिन हमें आगे जाना है, But we have to go forward. हमें घुटनों तक जाना है। We have to go up to the knees. घुटनों तक पानी प्रार्थना जीवन में बढ़ोतरी होती है। And when it talks about till knees, there we increase in our prayer life. परमेश्वर को और गहराई से खोजना हम शुरू करते हैं। And we start seeking the Lord with a greater depth. लेकिन वहां तक भी हमें रुकना नहीं है, But we don't have to stop there as well. हमें कमर तक पानी में जाना है। We have to go on in the water till our hip level. हमें मजबूत बनना है अपने विश्वास में, We have to become strong in our faith. हमें प्रतिबद्धता रखनी है। We have to be committed. लेकिन अब भी थोड़ा नियंत्रण खुद के पास हम रखते हैं। But even here, we are in control in some measure of our life. लेकिन जब बहुत गहराई हो जाती, जहां पर वो पानी तैरने योग्य हो जाता है, But then when the depth increases to such an extent that we have to swim in the वो water, पूरा समर्पण का जीवन है। that signifies a life of total surrender, absolute surrender. अब आप दिशा नियंत्रित नहीं करते, Now you are not the one who decides the direction of your life. आत्मा आपको बहाता है। The Holy Spirit will take you forward. तो आत्मिक वृद्धि क्या है? एक प्रक्रिया है। So what is spiritual growth? It is a process. ये एक गहराई से दूसरे तक हर 1000 हाथ आत्मसमर्पण के नए स्तर का प्रतीक है। This goes on from one depth to the another. Every time the width or the depth goes on increasing, it shows greater consecration to the Lord. तो ये बढ़ते जाने का जीवन है। It shows a life of increasing in the Lord. और भाई जैक बता रहे थे कि जब हमारा इस भौतिक जीवन से या सांसारिक बातों से पूरी तरह से हमारा अट्रैक्शन या हमारा इच्छा जब मर जाती है उन बातों के विषय में, तभी हम कह सकते हैं कि अभी हम पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। And Brother Zach was saying, when our entire attraction for this world goes away, then we can say that we are full of the Holy Spirit. इसलिए इफिसियों में पौलुस भी कहता है, इफिसियों 5 अध्याय उसका 15 से लेकर 18 वचन में, That is why Paul says in the letter to the Ephesians chapter 5 verse 15 to 18. तो इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाकरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो पौलुस हमें यह सिखाता है कि बुद्धिमानी से चलो, न कि मूर्खों के समान। समय को अनमोल जानना है क्योंकि दिन बुरे हैं। दाक मधु से मतवाले नहीं बनना है, यानी सांसारिकता से मतवाला नहीं बनना है, लेकिन आत्मनियंत्रण कर कर हमें आत्मा के अंदर बढ़ते जाना है। और फिर यूहन्ना 7 अध्याय उसके 38 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, We read in John chapter 7 verse 38. कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से, जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, जीवन के जल की नदियां बहेंगी। यीशु हमें सिर्फ कुछ बूंदे नहीं देते, वह नदियां देने का वादा करते The हैं। Lord does not give us some drops. He has promised rivers to flow out of us. फिर एक बार एक नदी क्या करती है? Then what does a river do? ये शुद्ध करती है, It purifies, ये तरोताजा करती है, it refreshes, और इस जीवन को बनाए रखती है। and it continues life, or it is life giving. तो आगे किन बातें हमें रोकती है पवित्र आत्मा पाने से, उन पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। What are the things that are hindrances or that stop us from being filled with the Holy Spirit? देखिए, हमें बेकार की जो बातें और ध्यान भटकाने वाली चीजों को छोड़ना है। We have to give up useless things or things that are distracting us. तो सबसे पहले जैसे मनोरंजन की चीजें, So first of all comes entertainment.
जैसे मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, then it is our mobile phone or social media. ये सब जरूरी है, All these things might be necessary, लेकिन कितना समय ये हमारा ले रही but है how much time do they eat away that we have? कि परमेश्वर को देने का समय क्या हम मनोरंजन को, मोबाइल को दे रहे हैं? Then the time that we have to give to the Lord, are we giving to entertainment? Are we giving that time to our phones? तो मुख्य बात क्या है कि सभी चीज आपके सामने तो है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। And so, what is the main point? Many things are in front of you, but not all those things are for you. जैसे 46 भजन संगीता 46:10 में लिखा है It says in Psalms 46 verse 10, कि चुप रहो और जान लो मैं परमेश्वर हूँ। be still and know that I am God. तो कैसे हमें पवित्र आत्मा मिलेगी? जब तक हम शांति के साथ जाकर सभी बातों से हटकर अपने आप को प्रभु के समक्ष नहीं लेकर आते। How can we receive the Holy Spirit unless we have quietened ourselves, we have removed ourselves from other things and we go before the Lord? और इन ध्यान भटकाने वाली बातों से अपने आप को अलग नहीं करते। And we do not, unless and until we do not separate ourselves from these distracting things. ये दूसरी बात है, जो नकारात्मक संगति है उसको हमें छोड़ना है। Second, we have to give up all kind of negative fellowship. देखिए, हर रिश्ता आत्मिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होता। Every relationship does not profit us spiritually. तो कुछ लोग हमें नीचे गिराते हैं, संदेह बोते हैं और परमेश्वर से दूर करते हैं। Some people put us down, they sow doubt in our minds and they take us away from God. तो अपने आप से हमें सवाल करना है, We have to ask ourselves, क्या ये संबंध मुझे परमेश्वर के करीब ला रहे हैं या मुझे परमेश्वर से दूर कर रहे हैं? this relationship that I have, is it bringing me closer to God or is it taking me away from the Lord? किसी व्यक्ति ने भाई जैक से प्रश्न पूछा था, Once upon a time, some person asked Brother Zach this, कैन आई बी अ फ्रेंड्स ऑफ सिनर? क्या मैं पापियों का मित्र हो सकता हूँ? can I be friends with sinners? तो भाई जैक ने बहुत ही बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी पापियों के मित्र थे। Brother Zach answered very wisely, yes, the Lord Jesus himself was a friend of sinners. लेकिन आपको यह देखना है, क्या मैं उस पापी व्यक्ति को क्या प्रभु की ओर आकर्षित करने में सफल हो रहा हूँ, या वो व्यक्ति मुझे अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रहा है? But we have to see that whether I am being successful in influencing him to the Lord, or is he influencing me and drawing me to the things of this world. तो अगर वो मुझे अपनी ओर या सांसारिकता की ओर आकर्षित कर रहा है, तो ऐसी संगति मुझे तुरंत छोड़ देनी चाहिए। If he is drawing me towards him or towards the world, I should give up that जैसा relationship. पहला कोरिन्थियों 15:33 में लिखा है, Just like it says in 1 Corinthians 15:33, 15:33, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। do not be deceived, for bad company corrupts good morals. और तीसरी बात, आलोचना और दोष निकालना बंद करना है, दूसरों का भी और खुद का भी। And the third thing is that we have to give up condemning and judging others, whether it is ourselves or whether it is judging or condemning other people. तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है And the Holy Spirit teaches us कि हमें प्यार, प्रेम, we have to live in love, करुणा in mercy, और प्रार्थना के लिए बुलाए गए हैं, and we have been called for prayer. किसी का न्याय करने के लिए We नहीं। have not been called to judge anyone. जैसा कि रोमियो 8:1 कहता है, Just like it says in Romans chapter 8 verse 1. अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। For now those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. तो अगर हम दूसरों का न्याय करते रहेंगे, आज जो वचन आया है तो हमारा हमेशा ध्यान रहता है, मैं भी पहले ऐसे ही करता था, अपनी पत्नी की ओर देखता था, सुना तेरे लिए बोल रहे हैं। And just like we are receiving the word today, earlier this was my exact attitude. I will look to my wife and say, hey, did you hear? Did you hear carefully? This part was for you. देखिए, मुझे न्याय करने के लिए नहीं बुलाया गया है। But I am not called to judge anyone. वो वचन मेरे लिए आया है, That word has come for me. मुझे अपने आप को परखना है, I have to judge myself. और तभी पवित्र आत्मा मुझे परिपूर्ण करेगा। Only then the Holy Spirit will fill me. जब मेरा हारा हुआ जीवन था, When my life was defeated, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को दिखाता था, सुना, देखा, किया, the reason for my defeated life was I was telling my wife, did you hear? Did you see? Did you do? Did you practice this? लेकिन जब उसे मैंने अपने लिए लेना शुरू किया, But when I started taking the word for myself, पवित्र आत्मा ने मुझे परिपूर्ण किया और मुझे पाप पर विजय दिलाई। the Holy Spirit filled me and gave me victory over sin. चौथी बात, Fourth hindrance, हर समय समस्याओं को बड़ा चढ़ाकर मत सोचे। we should not
every time exaggerate our problems and think that, oh, so big problems these are. देखिए बहुत से लोग हर समय सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो रहा है, Most people spend most of their time thinking, what is going wrong? लेकिन जब आप अपनी दृष्टि समस्याओं से हटाकर परमेश्वर पर केंद्रित करते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। But when you take your eyes off the problems and when you lift up your eyes to the Lord, then things will change. इब्रानियों 12:2 में लिखा है, Hebrews chapter 12 verse 2 says, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, तो जब despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. जब परेशानियां आती है, मुश्किलें आती है, तो हम किस ओर ताकते हैं? So when problems come, difficulties come, in which direction are we looking? क्या हम परमेश्वर की ओर ताक रहे हैं या उस समस्या को, उस मुश्किल को हम बड़ा करके देख रहे हैं? Are we looking to the Lord, or are we so greatly exaggerating our problems and looking at, oh, how big this problem is? जिस दिन हमारी देखने की दृष्टि बदल गई, मन फिराव का अर्थ क्या है? भाई जैक हमेशा समझाते हैं कि हम अगर इस ओर देख रहे हैं तो पूरा 180 घूमना है और प्रभु की ओर देखना है। The day our eyes are lifted from something and looking to the Lord, that is what Brother Zach says. Repentance is we are looking to something else. We repent means we turn around 180 degrees and we look to the Lord. देखिए, न जानते हुए हम विश्वास को नहीं कन्फेस करते, हम समस्याओं को कन्फेस कर कर हमारे जीवन में बढ़ाते रहते हैं। Unknowingly, we do not confess faith. We keep on confessing our problems and keep building up unbelief in our life. और पांचवी बात, अत्यधिक व्यस्त होना छोड़े। And fifth hindrance is we should give up being excessively busy. देखिए, कलीसिया के कार्य करना आवश्यक है, Yes, it is essential to do the things in the church. कलीसिया की बातों को करना आवश्यक है, It is essentially to do the different activities in the लेकिन church. उससे भी ज्यादा जरूरी परमेश्वर के साथ समय बिताना है। But much more important than all that is spending time with the Lord. मत्ती 11:28 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, Matthew 11:28, the Lord says, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो आज क्या हम अपने कार्यों में ही व्यस्त है, सेवकाई में व्यस्त है? क्या हमें समय मिल रहा है कि हम प्रभु के साथ बैठकर समय बिताए? देखिए, हमने अपने आप को कितने बोझों तले दबा लिया। अरे ये करना है, सेवकाई करनी है, वचन से बांटना है, अनुवाद करना है, कई पुस्तकों का अनुवाद करना है। हम उसमें हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रभु के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं तो हम बोझ तले दब जाते हैं और फिर धीरे धीरे आत्मिक जीवन से दूर होने लग जाते हैं। लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है प्रभु के साथ समय बिताना, और उसके साथ समय बिताकर जब हम इस कार्यों को करते हैं तो उसमें प्रभु की सामर्थ बहती है। and today have we become so busy that, oh, I have to do this for the Lord, I have to do that for the Lord, I have to translate a message, I have to translate a book, and all these things are eating away our time with the Lord. And when we see, instead of all this, if we spend time with the Lord, तो प्रभु की सामर्थ हमसे, then we see if we are busy with all this, we will be burdened and the strength of the Lord will go away from us. ये कहते समय एक वाक्य मुझे याद आया। When I say this, I remember a statement. देखिए, एक जगह पर एक व्यक्ति अपने दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक अपने बच्चे को शिष्यों के पास जब लेकर आता है, And once upon a time, a father brought his demon-possessed son to the disciples. लेकिन वो शिष्य जो है प्रभु यीशु मसीह के उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाते। And the disciples of the Lord could not cast away the demon. लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आते हैं, प्रभु के एक ही शब्द से वो दुष्ट आत्मा तुरंत चला जाता है। But as soon as the Lord came, in one word the demon was casted out. तो उसके आने से पहले प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर थे? But before that person came to the Lord, where was Jesus? बाइबल का ही वाक्य है। This is a statement from the Bible. बाइबल के ही वचन से मैं बता रहा हूँ। And I am speaking of an incident that has been recorded in the Bible. हाँ, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे, पिता के साथ समय बिता रहे And थे। Jesus has withdrawn. He was up on a mountain and he was spending time with the Lord and praying to the Father. लेकिन शिष्य किसमें व्यस्त थे? But where were the disciples engaged or busy? सेवकाई में व्यस्त थे। They were busy in ministry. लेकिन इतना डांटने के बाद भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए। But even after they rebuked, they could not cast away the demon. तब उन्होंने प्रभु से जाके पूछा कि प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए?
And then they went and asked the Lord, Lord, why could we not cast it out? प्रभु ने कहा कि ऐसी बातें प्रार्थनाएं और उपवास के द्वारा ही जाती। And the Lord said that this kind does not go out except by prayer and fasting. इसका अर्थ है कि प्रभु के साथ समय बिताने के द्वारा ही ऐसी बातें पर तुम जय पा सकते हो। That means only by spending time with the Lord you can overcome these things. और एक दूसरे शब्द में कहूँ तो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं, प्रभु की सामर्थ्य से ही दुष्ट आत्मा को निकाल सकते In हैं। other words, we cannot cast away demons in our own strength, but only in the strength of the Lord. और छठा, लोगों को खुश करने की कोशिश करना बंद करना है। Sixth, we should stop pleasing people. हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप परमेश्वर की योजना से चूक सकते हैं। And when you are constantly trying to please people, you will lose the will of God for your तो life. ये स्मरण रखे, लोगों की राय नहीं, परमेश्वर की आज्ञा महत्वपूर्ण है। We should remember that opinion of people is absolutely unimportant. It is God's commandment that is important. जैसा गलतियों 1:10 में कहा है, Just like it says in Galatians chapter 1 verse 10. क्या मैं अब भी मनुष्य को प्रसन्न कर रहा हूं या परमेश्वर को? फिर सातवीं बात है, हर बात को ज्यादा सोचने की आदत छोड़े। Seventh hindrance is that we should stop overthinking everything. मैं हर चीज जब परमेश्वर कुछ करने को कहे तो तुरंत पालन करे, संदेह को स्थान मत दे। If the Lord tells us to do anything, do it immediately. Don't give any place for doubt. एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। I'll give a small example. जब प्रभु की आत्मा कहती है कि तूने गलत शब्दों में अपनी पत्नी से बात की है, जाकर माफी मांग। When the Spirit of the Lord tells us that you have spoken wrongly in a wrong tone to your wife, go and apologize. तो कितना जल्दी हम जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं? How quickly we go and apologize? या हम सोचने में समय बिताते रहे, उसकी गलती थी, उसने ऐसा कहा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों जाकर माफी मांगू? Or do we keep on thinking, oh no, I should not have, it was her mistake. She spoke like this. Why should I go and apologize? तो जब तक आप एक आवाज को जब मानेंगे नहीं प्रभु की, तो क्या प्रभु आपको दूसरी आज्ञा देगा? Unless you obey in one voice what the Lord is saying, will the Lord ever give you another commandment? नीति वचन 3:5 में लिखा है, Proverbs chapter 3 verse 5 says, कि अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा मत लो। तो वहां पर संपूर्ण मन से हमने प्रभु पे भरोसा रखना है कि हाँ, ये माफी मांगने अगर कहा है तो प्रभु की ही आवाज है। मैंने अपने आप को नम्र करना है और जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगना है। लेकिन अगर हम घमंड से भरे रहेंगे तो पवित्र आत्मा कभी भी हमें नहीं मिलेगा या कभी भी हमारे अंदर नहीं आएगा। तो इन बातों को जो है हमारे जीवन में हमने छोड़ना है ताकि हम नम्र हो सके। देखिए, नदी जब भी बहती है तो नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहती है, नदी हमेशा ऊपर से ही नीचे की ओर and बहती we है। have to trust in the Lord that the Lord has convicted me to go and apologize. I should go and apologize. And let us judge ourselves, evaluate ourselves according to what we heard. We see that a river always flows from higher level to lower level. तो जब आप जितने नीचे होते जाओगे उतना ही आप पवित्र आत्मा से भरते जाओ। The lower you go, the more you will be filled with the Holy Spirit. भाई जैक बहुत अच्छा प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देते हैं। Brother Zach gives a very good example of the Lord Jesus Christ. देखिए, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर थे? परमेश्वर के साथ थे। Where was the Lord Jesus Christ? He was with the Father. फिर वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। Then he came here becoming a man on this earth. फिर मनुष्य तो ठीक था, लेकिन एक क्रिमिनल की मृत्यु उन्होंने क्रूस के It ऊपर was सही, sufficient for him to be a man, but he died the death of a criminal on that cross. और उसके बाद गाड़े गए। And then he was buried. लेकिन जब वो अपने आप को उन्होंने नीचे नीचे किया तो क्या हुआ? तीसरे दिन वो फिर जी उठे और आज पिता के दाहिने हाथ पर बैठे। When he continued to humble himself, what happened? Third day he was rose again, and today he is seated at the right hand of God. तो जितना हम अपने आप को नम्र करेंगे उतना ही हम पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। As much as we humble ourselves, to that extent we will be filled with the Holy तो Spirit. आज हमारा जीवन कैसा है? केवल हड्डियों और मांस से सुंदर दिख रहा है या सचमुच हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो चुके हैं? How is our life today? Has our life really been filled with the Holy Spirit, or are we just covered with flesh and bones? क्या पाप हम पर प्रभुता कर रहा है? Is sin lording over us? प्रभु का वो वादा हमारे अंदर नहीं पूरा है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि आत्मा के अधीन हो। Then that promise has not been fulfilled in us, that sin shall not have dominion over you, for you are not under law but under grace. तो आज अगर पाप प्रभुता कर रहा है तो हम अब भी व्यवस्था के अधीन हैं, हम आत्मा के अधीन नहीं हुए। Today if sin is dominating us, it is having dominion over us, then we are not under grace, we are under law today. क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं
किसी बात का घमंड हमारे अंदर है, प्रभु का अनुग्रह हमें नहीं मिला है। Because even today there is some pride in us. We have not received the grace of God. इसलिए आइए हम अपने आप को नम्र करें, So come, let us humble ourselves. इस पवित्र आत्मा की चाह रखें And we should desire the Holy Spirit. कि परमेश्वर हमारा जीवन अपनी पवित्र आत्मा और उस आग से हमें बपतिस्मा दे, And may the Lord baptize us with His Holy Spirit and fire. कि आज से हमारा जीवन इस तरह का नहीं रहे जैसा आज तक था, इसमें बदलाव आए और हम पाप पर जय पा And सकें। our life will be transformed henceforth, that it will not be the same old life, but we will be able to overcome और sin. वही प्रभु की इच्छा है। And that is the Lord's desire. देखिए जब भाई ने पूछा कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, And when brother asked, what is your aim? What is your goal? तभी शालोम ने तुरंत उत्तर दिया कि हमें मसीह समान बनना है। And Shalom immediately answered, we have to become like Christ. तो मसीह किस तरह के थे? And how was the Lord? देखिए स्वर्ग में थे, He was in heaven. धरती पर आए, He came on this earth. क्रूस के ऊपर उन्होंने कोई पाप नहीं किया, तब भी एक मुजरिम की उन्होंने मृत्यु सही। Even though he was sinless, he died a criminal's death. तो इसी तरह हमें भी हर दिन अपने आप को नम्र करना है ताकि पवित्र आत्मा हम पर आ सके और इस जीवन को हम जी सके। This is how we have to humble ourselves every day, that the Holy Spirit will come to us and we can live this life. प्रभु से मेरी भी यही प्रार्थना है कि केवल टखनों तक पानी ना रहे, This is my prayer from the Lord, that the water will not be to the ankle level. वो घुटनों तक आए, It may come up to knees, फिर कमर तक आए, up to the waist. फिर ऐसी गहराई में मैं चले जाऊं कि जहां मुझे तैरना पड़े उस नदी के अंदर। And I go to such a depth that I have to swim in that river. प्रभु मेरी भी सहायता करे May the Lord help me और हम सबकी सहायता and may करे। the Lord help us all.